அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रतियोगी कर्क कसदर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अपने दोस्तों में बांटिए. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. आज का शीर्षक है रहीम सुधा. वही रहीम सुधा के अंतर्गत कुछ दोहों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. आज का दोहा है, प्रेम पथ ऐसे कठिन को वो निभाहत नाही. प्रेम पथ ऐसे कठिन को वो निभाहत नाही. रहमन पौर्ण तुरग चढ़ी चढ़ी वो पावक माही. रहीम कहते हैं प्रेम पथ बड़ी कठिन है, उसे हर कोई निभाहत नहीं. அன்பு என்ற பாதை இருக்கிறது. அந்த அன்பு என்ற பாதையை நாம் கடைபிடிப்பது, போவது என்பது, போய் வெற்றி பெறுவது என்பது ரொம்ப கடினமானது. எல்லோராலும் அதை கடைபிடிக்க முடியாது. निभाहत नाही, पालन करना मुश्किल है. सभी लोगों को उसका पालन करना मुश्किल है, क्योंकि प्रेम मार्ग जो है इतना कठिन है. அன்பு என்ற பாதையானது இவ்வளவு கடினமானது. ஆகவே அதை எல்லோராலும் நிர்வகிக்க முடியாது. அது அன்பு என்பது ஒரு ஆள் மீது இருக்கலாம், ஒரு பெண் மீது இருக்கலாம், ஒரு நாட்டு மீது இருக்கலாம், சொத்து மீது இருக்கலாம், அல்லது வீட்டு மீது இருக்கலாம், ஒரு பிள்ளை மீது இருக்கலாம். எந்த யார் மீது அன்பு வைத்தாலும் அந்த அன்பு என்ற பாதையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவது, கடைப்பிடிப்பது, ஒபே பண்ணுவது மிக மிக கடினமானதாகும் என்கிறார் ரஹீம். அது எப்படி சொன்னால், ரஹீமன் பௌர துறகு செடி செடியோ பாவக்கு மாறி. பாவக்கு கீழே நெருப்பு எரிந்து கொடுக்கிறது. நெருப்பு பாவக்குனால் நெருப்பு ஆகு, தொடர்ந்தால் போடா. கீழே நெருப்பு எரிந்து கொடுக்கிறது. காற்று பலமாக வீசி கொடுக்கிறது. காற்று வீசுகின்ற பொழுது அந்த காற்றிலே அந்த நெருப்பு மத்தியிலே குதிரையிலே போய் கஷ்டமானதோ. அது என்றால் காற்று வேகமாக வீசும் பொழுது நெருப்பு பலமாக எரியும். அதே போல குறைகின்ற பொழுது நெருப்பு குறைவாக எரியும். காற்று பாருங்கள், அடிக்கும், குறைவாகும், வேகமாக அடிக்கும், குறைவாக அடிக்கும். ஒரே மாதிரி காற்று அடிக்காது. ஃபேன் கால மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்காது. बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा. वो हवा के बढ़ने पर आग भभक उठेगा, हवा के कम होने पर आग दब जाएगी. ஆனால் வேகம் குறைந்து விடும். காற்று அதிகமாக வீசினால் நெருப்புடைய வேகம் அதிகமாகும். காற்று குறைவாக வீசினால், தனிந்து வீசினால் அதனுடைய வேகமும் தனிந்து விடும். ஆக அதற்கு மத்தியிலே நாம் குதிரை ஏறி சவால் செய்வது எவ்வளவு கடினமோ அதுபோலத்தான் அன்பு என்ற பாதையிலே நாம் செல்வது மிக மிக கடினமானதாகும். நெருப்பினுடைய பாதையிலே காற்றின் வேகத்தோடு எப்படி நாம் குதிரை ஓட்டுவது கடினமானதோ அதுபோல் கடினமானது அன்பு என்ற பாதையிலே நாம் செல்வது. அந்த அன்பு என்பது பற்று என்பது அதான் சொன்னார். வள்ளுவர் சொல்வார், பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றினை பற்றுக பற்று விளக்கு என்று வள்ளுவர் சொல்வார். ஆக எதன் மீது ஆசை வைத்தாலும் சரி, பற்று வைத்தாலும் சரி, அது நம்மை துன்பத்துக்கு தான் ஆட்டும். உதாரணமாக ஒரு விளக்கு இருக்காது, விளக்கு எரிக்கிறது, அது ஒளியை தருகிறது. அந்த விளக்கினுடைய ஒளிவு ஆசைப்பட்டு விட்டில் பூச்சி அதை நாடி போகிறது. அருகே போகின்ற பொழுது விட்டில் பூச்சியானது அதன் சிறையில் இருந்து தானும் கருகி அழிந்து போகிறது. இருந்தாலும் கூட விட்டில் பூச்சிகள் அதை விடுவதில்லை. மறுபடியும் தொடர்ந்து போகும், மறுபடியும் போகும், அதில் விழும், கருகிவிடும்.
மீண்டும் போகும், அதில் விடும், கருகிவிடும். அப்படி அன்பு என்ற பாதையானது மிக கடினமானது. அதை எல்லோரும் உபயோக பண்ண முடியாது, எல்லோராலும் அதை கடைப்பிடிக்க முடியாது. அது எந்த அன்பு தான் பரவாயில்ல, தாய் பாசமோ தந்தை பாசமோ அல்லது பிள்ளை பாசமோ ஏதாவது இருந்தாலும் அன்பு என்பது, அதான் சொன்னார் கவியர் சார், அன்பு என்பது என்னென்ன கேட்டேன், அழித்து பார் என எழுதியிருக்கிறார். அன்பு என்பது கொடுப்பதுதான், கொடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். எதாக இருந்தாலும் சரி, கொடுப்பு ரொம்ப கஷ்டமானது, எளிதுதான். ஆனால் எல்லோருக்கும் எளிதல்ல, எல்லோருக்கும் மனம் வராது. அதுபோல அன்பு என்ற பாதையிலே போவது மிக கடினம். சில பேர் பாருங்கள், தெருநாய்களை எடுத்து போடுவார்கள், கொண்டு போவார்கள். அது நோயுற்று இருந்தால் அதற்கு சிகிச்சை அளிப்பார்கள், தன் வீட்டில் வைத்திருப்பார்கள். அதுபோல சில பாருங்கள், அனாதையாக இருக்கின்ற பிணங்களை கொண்டு போவார்கள், அதற்கு அடக்கம் செய்வார்கள். இதுபோல் நிறைய தொண்டு நூல்கள் இருக்கின்றன. அது மிக கடினமானது. எதன் மீது நாம் அம்பு சேர்த்தாலும் அதை நாம் மிக சாத்துரியமாக சாமர்த்தியமாக அதை निर्वहिக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் கடுமையாகிடும். इसलिए प्रेम पथ पर चलना ऐसी है, हवा के घोड़े पर चढ़कर अग्नि के पथ पर चलना, अग्नि पथ के पथ पर चलना इसी के समान होता है. इसलिए हर कोई उसे निभा नहीं सकता, हर कोई उसे उसका पालन नहीं कर सकता. எல்லோராலும் அது முடியாது. உதாரணத்துக்கு மதர் தெரேசா அவர் வெளிநாட்டில் இங்கே வந்தார், இந்தியாவுக்கு வந்தார், குமரியாக வந்தார், இளம்பெண்ணாக வந்தார், இங்கே கல்கட்டாவுக்கு வந்தார், இந்தியாவுக்கு வந்தார். இங்கே தொழுநோயால் வாடுகின்ற மக்களை பார்த்தார். உடனே அவர் அங்கேயே தங்கிவிட்டு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு சேவை செய்வதிலேயே அவருடைய வாழ்நாள் புறாவையும் படித்தார். இங்கேயே அவர் மறைந்தார் என்பது வரலாறு. அதுபோல அன்பு என்பது மிக கடினமானது. அப்படி அவர் தன் வாழ்நாள் பூராவும் அதை கடைப்பிடிக்க, அந்த சேவையை செய்வதற்கு அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு என்று பார்க்கிறார். அதனால் அன்பு என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. அதை எல்லோராலும் நிர்வகிக்க முடியாது, மேனேஜ் பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும், ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறார் இங்கே ரஹீமான். ऐसे कठिन प्रेम पथ, ऐसे कठिन को वो दिवागत नहीं, कोई भी हर कोई इसका पालन नहीं कर सकता. जैसे रहीमान पवन तुरग चढ़ी, तुरग मतलब घोड़ा, चढ़ी वो पावक माही, पावक में ही पाव अग्नि, आग में, माही मतलब में. और दूसरा है मूढ़ मंडली में जन ठहरते नहीं, विशेष करके मूर्खों की मंडली में, मूर्खों की संगति में, मूर्खों की सभा में सज्जन लोग नहीं ठहर सकते. முட்டாள்களுடைய ஜார்ஜ் பெர்னாஷா ஒரு முறை உலாவி போட்டிருந்தார். ஒரு ஒரு மூலன் தான், ஒரு அயோக்கியன் வந்தான். அவன் இவரை தாழ்த்தி காட்ட, அவமானப்படுத்த எண்ணினான். உடனே அவன் சொன்னான், அவரை பார்த்து சொன்னான், ஐயா வணக்கம் சொன்னான். வணக்கம்னார் அவர். உடனே நானெல்லாம் என்னப்பா வந்தா, என்னப்பா சமாச்சாரம் என்று கேட்கும்போது அவன் சொன்னான், நான் முட்டாள்களிடம் பேசுவதில்லை. என்ன சொன்னாங்க, நான் முட்டாள்களிடத்திலே பேசுவதில்லை. मैं मूर्खों के साथ बात नहीं करता. बेर्नाशा से एक आदमी आके बोला, एक मूर्ख आके बोला, मैं बेवकूफ़ों से, मूर्ख लोगों से बात नहीं करता. तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, मैं बात करता हूँ. जो சொன்னார், நான் பேசுவேன். இவரை பார்த்து அவன் முட்டாள் என்றான். அவரோ அவனை பார்த்து அவனுக்கே தெரியாமல் அவனை मुट्ठाल समझता है. इस प्रकार मूर्खों के बीच में रहना सज्जन लोगों के लिए मुश्किल है. मूर्खों के बीच में रहना सज्जन लोगों के लिए मुश्किल है. முட்டாள்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்வது
அறிவற்றவர்களுக்கும் அவருடைய மத்தியிலே அவருடைய கூட்டத்திலே இருப்பது என்பது மேன்மக்களுக்கு நல்லவர்களுக்கு அரிதான காரியமாகும். உதாரணமாக हम मोड़ मंडल में तुझन अगरता नहीं विशेष करके श्याम कसन से ज्यों दूरी की जब दीजिए. देखिए उदाहरणமாக நாம் கண்ணாடியிலே நம்முடைய முகத்தை பார்க்கிறோம். आईने में हम अपना मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो सिर में बाल हैं, कुछ काले भी हैं, कुछ पीले, कुछ सफ़ेद भी हैं. ज़्यादातर बाल काले हैं, कुछ सफ़ेद हैं. तो हम क्या करते हैं, तुरंत उस सफ़ेद बाल को निकाल देते हैं, है ना. इसी प्रकार जो लोग मोरकों की मंडली में सज्जन लोग नहीं कर सकते, उसके जैसे श्याम कचन से सेत ज्यों, सेत में वाइट दूरी की जब देखी, उसको देखते हम क्या करते हैं, सफ़ेद बाल को काले बाल से उखाड़ फेंकते हैं. उसी प्रकार हम भी मूर्खों की मंडली में बैठे नहीं रहना चाहिए. अगर बैठे रहेंगे तो वे हमको उखाड़ फेंकेंगे. इस प्रकार हम सफ़ेद बाल को देखकर उखाड़ कर फेंकते हैं, उसी प्रकार वे हमें फेंक देंगे. इसलिए तब बोलूँगा சேரிடம் அருந்து சேர், சேரிடம் अरविंद शेर. इसलिए कहते हैं जो ऐसे लोग से हमें मिलना चाहिए जो सज्जन हों, सच्चरित्रवान हों. ऐसे लोगों से हमें मिलना चाहिए, दुर्जन से हमें नहीं मिलना चाहिए. अगर हम उसके साथ में रहेंगे तो वे हमें फेंक देंगे. इस प्रकार हम सर के सफ़ेद बालों को काट फेंक देते हैं. उसी प्रकार इसलिए यहाँ पर इनका संदेश है, हमें மூர்க்கோं की मंडली में नहीं रहना चाहिए. நாங்கள்லாம் அறிவற்ற உடைய மக்களுடைய மத்தியில் நாம் இருக்கக்கூடாது, வாழக்கூடாது, இருக்கவும் கூடாது என்கிறார். तीसरा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विषय व्यापक नहीं रखते रहत भुजंग. जो स्वभाव से ही अच्छे होते हैं, जो स्वभाव से ही अच्छे होते हैं, யாரெல்லாம் இயல்பாகவே நல்லவர்களோ, இயல்பாகவே பிற திருப்தி அல்ல, இயல்பாகவே யாரெல்லாம் நல்லவர்களோ அவர்களை தீயவ சேர்க்கை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கா कर सकत कुसंग, क्या कर सकता है कुसंग. मतलब बैड फ्रेंडशिप, बैड फ्रेंडशिप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जो स्वभाव से अच्छे होते हैं उन्हें बुरी दोस्ती कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. யாரெல்லாம் இயல்பாகவே உண்மையாகவே நல்லவர்களோ அவரை தீயவ சேர்க்கை அவருக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் செய்துவிட முடியாது. उदाहरण के लिए चंदन विषय व्यापक नहीं लगते रहत भुजन. காடுகளிலே சந்தன மரம் இருக்கும். சந்தன மரத்தை அதனுடைய வாசனை, அதனுடைய குளிர்ச்சி, அதை தேடிக்கொண்டு பாம்பு சென்று அதை சுற்றிக்கொண்டே இருக்கும். ஏனென்றால் அதனுடைய குழுமைக்கு பிடிக்கும், வாசம் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா, சந்தன வாசம். ஆக சந்தன வாசத்துக்காக மலைப்பாம்பு அதை சுற்றி கொண்டு படுத்திருக்கும். ஆனால் மலைப்பாம்பிடம் விஷம் இருக்கிறது, சந்தன மரத்திடம் வாசம் இருக்கிறது, குணம் இருக்கிறது, நிறம் இருக்கிறது. குணம், நிறம், மனம் அனைத்தும் இருக்கிறது சந்தன மரத்திடம். ஆனால் பாம்பன் இருக்கிறது விஷம் மட்டும்தான் இருக்கிறது. எந்தான் நீ பாம்பானது அந்த சந்தன மரத்தை கூர்மை இருக்கிற சுட்டி கொண்டிருந்தாலும் கூட சந்தனத்தை அந்த பாம்பு விஷமானது ஒன்றும் பண்ணாது. சந்தன மரத்தை பாம்பு விஷமானது தீண்டாது, கெடுதல் செய்யாது. அதுபோல தன்னை சுற்றி எத்தனை தீயவர்களுக்காக கூட சரி, இயல்பாகவே நல்லவன், அவனை பார்த்து இவன் கெட மாட்டான். சகாசம் சரியில்லைங்க இந்த தேடி சொல்லுவாங்க, என்னங்க பையன் பண்ணுறான், இதோ போகிறான் வரான், என்ன பண்ணுறான், வேலை செய்கிறானா, படிக்கிறானா, படிச்சு முடிச்சுட்டா எல்லாம் கொடுத்துருக்கான், கண்ட பக்கம் சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏங்க பண்ணுறது நல்லதாக இருந்தான், ஆமாங்க சேர்க்க சரியில்லைங்க,
சகவாசம் செய்வார்கள். ஆக சேர்க்கையின் காரணமாக ஒருவன் किट्टू போட முடியாது. संगति के कारण स्वभाव से जो अच्छे होते हैं वे कभी बुरे नहीं बन सकते. इस प्रकार जंगल में सांप, जहरीला सांप, विषपांब, जहरीला सांप चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, फिर भी विष का असर चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता. அந்த விஷயத்தினுடைய விளைவு சந்தன மரத்துக்கு எந்த விளைவு ஏற்படுத்தாது. அதுபோல इसी प्रकार जो स्वभाव से अच्छे होते हैं யாரெல்லாம் இயல்பாகவே நல்லவர்களோ அவர்களை இந்த தீய செய்தியானது அவர்களுக்கு எந்த கெடுதலும் செய்ய முடியாது. ஆகவே நல்லவன் நல்லவர் தான், நல்லவன் நல்லவர் தான். அட்டாலும் பால் சோயில் குன்றாது அவையா சொல்வார். அட்டாலும் பால் சோயில் குன்றாது அறவளாய் நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர். நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர், கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே, சங்கு சுட்டாலும் வெண்மைகளே. தங்கத்தை நீங்கள் புறப்பட்டால் கூட அது தங்கத்தினுடைய குணமானது மாறாது. அது அப்படியே தான் இருக்கும். அது எப்படும் மாறாது. கையும் சொல்கிறாரு, மீன் சொல்கிறாரு, कबीर सुनारे हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही. हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही. बगा डंडोरे माचरी, बगा डंडोरे माचरी. हंसा मोती ही कावे. हंसा हंसा मोती ही कावे. अन्नपड़े मुत्ता साहब. हंसा मोती ही कावे. हंसा बगुला एक सा. அன்னப்பறவையும் கொக்கும் இரண்டும் நிறம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இருக்கும் மான் சரோவர் மாகி. மான் சரோவர் ஏரியிலே அது வாழும். ஆனால் இரண்டும் ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட சாப்பிடும் நேரம் வரும்பொழுது அந்த பகுலா மசுலிக்கோ கூடேகா, அந்த கொக்கானது மீனை தேடும். ஹம்சா மோத்தியை காணும். அன்னப்பறவை முத்தை மட்டுமே சாப்பிடும். அதுபோல இரண்டும் நல்லவர் கெட்டவர் சேர்ந்திருந்தாலும் கூட இயல்பாகவே எவர் நல்லவனோ அவனை ஒன்றும் செய்கிறாரு. தீயவர் சேர்க்கை ஒன்றும் செய்கிறாரு. बुरी संगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है. जो स्वभाव से ही सज्जन होते हैं, जो स्वभाव से ही अच्छे होते हैं, उन्हें बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है. इसलिए अच्छे अच्छे ही होते हैं, महान ही होते हैं. इसलिए उनसे हमें ज़्यादा कोई चिंता नहीं है. पावस देखी रही मन कोयल सादी मौन. पावस देखी रही मन कोयल सादी मौन. अब दादुल वक्ता वये हमको पूछत कौन, हमको पूछत कौन. पावस देखी रही मन. रही சொல்றாரு. பாவஸ்னா வருஷா ருத்து, ரெய்னி சீசன். மழை காலத்திலே குயில் கூவாது. अब இப்பொழுது வசந்த காலம். अब वसंत काल है. देखिए कोयल कुकू करती है. वसंत काल में, वसंत ऋतु में कोयल कुकू करती है, मीठी बोली से गाती है कोयल. वही वर्षा ऋतु में नहीं गाती है क्योंकि चुप हो जाती है. पावस देखी रहीम मन. रहीम पावस देखकर रहीम कहते हैं, पावस को देखते ही अपने मन में कोयल सादी मौन, कोयल मौन साधते हैं. குயில் மௌனம் சாதிக்கும். மழை காலம் வந்த உடனே, மழை காலம் ஆரம்பித்த உடனே குயில்கள் மௌனம் சாதிக்க ஆரம்பித்துவிடும். அதுகள் கூவாது. குயில் மழை காலத்திலே கூவாது. ஏனென்றால் अब दादुल वक्ता भय. एक सभा में हम जाते हैं और मीटिंग போகிறோம், பரிசை போட்டிருக்கோம். தலைவர் ஒருத்தராக கூப்பிடுவார், வாங்க நீங்கள் பேசுங்க சொல்லி. जो जो दादुल जो वक्ता है उनकी बातें हमें सुननी पड़ती है, लेकिन हमें उस समय कुछ नहीं बोलना चाहिए.
मौन रख करके उनकी बातों को सुनना चाहिए। यही है ना, जो सभा में वक्ता जो बात, जिसको अध्यक्ष जी सभाध्यक्ष है उसको बुलाते हैं, उसी को बोलना चाहिए। अन्य लोगों को मौन साधना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप आज के वक्ता वे हैं। यहाँ पर वर्षा ऋतु में मಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಚಾಯಾಗದಿಮ ತವಳಿದ अब दादुर वक्ता भये दादुर मेंढक இந்த மழைக்காலத்திலே யார் பேச்சாளர் தெரியுமா? தவளைதார் பேச்சாளர். ஆகவே अब दादुर वक्ता भये மழைக்காலத்திலே தவளைகள் தான் பேச்சாளர். ஆகவே குயில் என்ன பண்ணோம்? அமைதியாக இருக்கணும். அதுபோல் நாமும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். अब दादुर वक्ता भये हमको पूछते कौन, हमको पूछते कौन, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे बारे में पूछने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं अब दादुर वक्ता भये हमको पूछते कौन. இப்பொழுது தவளைகள் தான் இப்பொழுது சிறப்பு பேச்சாளர்கள், சீஃப் கெஸ்ட். ஆகவே நாங்கள் எங்களை கேட்க யாரும் இல்லை, எங்களுடைய பேச்சை கேட்க யாரும் இல்லை. ஆகையாலே நாம் செய்யணும், அமைதி காக்க வேண்டும், हमें मौन साधना चाहिए. इस प्रकार कोयल चुप्पी साधती है. वसंत ऋतु में, सभी ऋतुओं में, खास करके वसंत ऋतु में कोयल अपनी मीठी बोली से गाती है, कूक कूक करती है, लेकिन वर्षा ऋतु में वो चुप रह जाती है. उसी प्रकार जब सभा में वक्ता की बारी आती है, वक्ता को ही बात करनी चाहिए, वक्ता ही को भाषण देनी चाहिए, हमें चुप बैठे रहना चाहिए. इसलिए जहाँ मतलब क्या है, वस्तु स्थिति को पहचान कर हमें काम करना चाहिए. चाहे जहाँ भी हो, எங்கே போனாலும் அந்த சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தம்மை அமைத்துக்கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு பெருமை, நம்முடைய கருத்துக்கு பெருமை, நம்முடைய இருப்புக்கு பெருமை, நம்முடைய வாழ்வுக்கு பெருமை. தேவையற்ற போதுதான் பேசக்கூடாது. எப்பொழுது தேவையோ அப்போது மட்டும்தான் பேச வேண்டும். जब अध्यक्ष जी हमको बुलाते हैं आके आप भाषण दीजिए, तो हमको जाके भाषण देना चाहिए, लेकिन जो वक्ता बोल रहे हैं उस समय हमें चुप रहना चाहिए. इसके लिए अच्छा उदाहरण है कोयल. वापस देखिए रही मन कोयल सादी मौन. अब दादुर वक्ता भये, दादुर मीन्स मेंढक, फ्रैग, तवड़े, वक्ता भये भाषण करता बन भये बन गए. हमको पूछते कौन, हमको पूछने वाला कोई नहीं है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि भाषण करता मेंढक है, हम नहीं हैं. इसलिए हर जगह जहाँ भी हम जाए, जब हमारी बारी आती है तभी हमें बात करनी चाहिए, नहीं तो हमें चुप रहनी चाहिए. यही संदेश हमें प्रस्तुत लोग में रहीम हमें दे रहे हैं. एक बार फिर दोबारा ऐसे ही आप समझ लीजिए. आशा है कि आप समझ लेंगे. खास करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उत्तरार्ध छात्रों के पाठ्यक्रम के अनुसार मैं उनको वर्क ले रहा हूँ. तो ये लोग, उन लोगों से प्रार्थना है कि आप किताब खोल कर रखिए, आप देखिए, आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए. जैसे प्रेम पत्र ऐसे कठिन को निभावत नहीं, निभावना पालन करना. रहीमन पौरत तुरग चढ़ी, आवारूपी घोड़े पर चढ़कर पावक माही. अग्नि में, आग में चलना बड़ा मुश्किल होता है. इसी प्रकार प्रेम पथ भी कठिन है. और दूसरा है मूढ़ मंडली में ठहरता नहीं. मूढ़ मंडली में सज्जन ठहरता नहीं. विशेष करके, खास करके, स्पेशली, क्योंकि श्याम कचन से सेत जो दूरी की जाता देख. अंदर काले बादल में सफ़ेद बादल अगर हो तो उसको देखते उसको इसे निकाल फेंकते हैं. इसी प्रकार मूढ़ लोग हमें भी निकाल दे देंगे. इसलिए हमें
मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो नहीं उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमन जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। और वापस देखी रही मन कोयल सादी मौन, वापस देखी रही मन कोयल सादी मौन। अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत को, अब दादुर वक्ता भये बने, वक्ता भाषण करता, दादुर मेंढक, अब मेंढक भाषण करता है, मैं नहीं, इसलिए कोयल चुप रहता है। इसलिए हमें वस्तुस्थिति को जान करके ही बोलना बात करनी चाहिए। जब हमारी बारी आती है तभी हमें बात करनी चाहिए, भाषण देना चाहिए। उसके पहले जो भाषण दे रहे हैं उनके भाषण को हमें सिर्फ सुनना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए या नहीं, वो हमारे विचार के अनुसार है। इसलिए हमें वस्तुस्थिति को पहचान कर, प्रेजेंट पोजीशन उसको पहचान कर हमें काम करना चाहिए। एक बात के लिए हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अब परीक्षा शुरू करने के बोलने के समय हो गया है, 10 मिनट बाकी है, वहाँ से 1 किलोमीटर तक जाना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तब कोई आदमी कोई हमको रोकता है और क्या करता है, बैठो बैठो टहरो टहरो बोलता है। तो कोई पुलिस वाला बोलता है, ये टहरो, कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ। जा, आपके पास लाइसेंस है, ये है वो है, वो पूछता है। वो तो उसका कर्तव्य है, उसे हम गलत नहीं मान सकते। उससे हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करते रहना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। वो क्या जो चाहता है उसको देख करके हमें अपनी राह देनी चाहिए, तभी हम समय पर परीक्षा भवन में पहुंच सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। ऐसी वही है उसे वस्तुस्थिति, प्रेजेंट पोजीशन, वस्तुस्थिति को पहचान कर हमें कार्य करना चाहिए। उससे उनके साथ हम वार्तालाप करते रहेंगे तो समय कट जाएगा और वहाँ पर परीक्षा देना, वो स्कूल का द्वार, सेंटर का द्वार बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें जो भी काम हो वस्तुस्थिति को पहचान कर, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट पोजीशन को समझ पहचान कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश हमें इसके जवाब देते हैं रहीम जी। पावस देखे रही मन कोयल सादी मौन, हम दादुल वक्ता भये हमको पूछत कौन, हम दादुल वक्ता भये हमको पूछत कौन। आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, आप अच्छी तरह सुन रहे होंगे, अर्थ भी आपको मालूम हुआ होगा और आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर की बांटिए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। इसी प्रकार आज रोज एक शिक्षक पर आपसे मिलता रहूँगा। कल एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन। धन्यवाद. நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன். இது போன்ற ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுக்கு செய்திகளை, ஒவ்வொரு கவிதையுடைய செய்திகளை ரஹீம் வந்தவுடனே அரசாக कबीरदास आर्मी हुए इशारत उत्तरार्ध के प्रजातियों के लिए। जो प्रजाति नहीं है, जो प्रवीण के प्रजाति हैं, जो इशारत के प्रजाति है और जो प्रविष्का के प्रजाति भी हैं, उनके लिए भी ये जो है बहुत लाभदायक है। इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाइए, सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप उसमें बात कीजिए और कमेंट्स में अपना विचार मुझे प्रकट कीजिए। इसमें बोलना नहीं। उत्तर भारत से भी दोस्त हमें कमेंट दे रहे हैं, हमको अपनी राय सुना रहे हैं, शायद जी ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। आप भी ऐसे सुनाया करें
कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आपका जो शक है उसका खुलासा मैं करा दूँगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो भी हो मुझसे बात कीजिए, फ़ोन में बात कीजिए। मेरा नंबर आपके पास है 9943645461 9943645461 या 8807828261 ये दो नंबर हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे बुलाइए। कमेंट्स में आप अपना विचार प्रकट कीजिए ताकि वो मेरे लिए क्या होगा, प्रेरणादायक रहेगा। इसके साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे। धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी। जय हिंद।